ملک میں بارش اور سیلاب سے تباہکاریاں، چلاس اور استور میں آبی ریلے نے تباہی مچا دی۔ بابو سر سیلابی ریلے میں بہنے والے 15 افراد تاحال لاپتہ۔ علاقے میں اسکول، ہوٹل، پولیس چوکی اور درجنوں مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ شاہراہ بابو سر میں پھنسے تمام سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ناران اور کاغان کے تمام راستے فی الحال بند۔ ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق بارش اور سیلاب سے 5 اموات ہوئیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ فیصل آباد، بھوانا، خانیوال، حافظ آباد، احمد پور، سیال، وہاڑی اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ بارش کا پانی گلی محلوں میں جمع، ندی نالوں میں طغیانی فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر منہدم۔ فیروز والا میں بھیڑ نالہ بپھر گیا، نالے کے قریب کھیلتے 3 بچے ڈوب گئے، 2 بچوں کو بچا لیا گیا، 1 کی تلاش جاری۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں سے تباہی، گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 3 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 245 ہو گئی۔ 26 جون سے اب تک 603 افراد زخمی ہیں۔ سب سے زیادہ پنجاب میں 135 افراد لقمہ اجل بنے۔ NDMA کے مطابق بارشوں سے 804 سے زائد گھر مکمل تباہ، کئی خاندان بے گھر ہو گئے۔ راولپنڈی اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا الرٹ، مری میں رات بھر بارش سے درخت گر گئے، گاڑیاں پھنس گئیں۔ بوستان روڈ اور ایکسپریس وے پر لینڈ سلائیڈنگ، 3 افراد زخمی، 11 لوگوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ جھنڈا گلی میں لینڈ سلائیڈنگ سے 2 گھر متاثر۔ شوگر ملز نیشنل بینک آف پاکستان کی 23.3 ارب کی ڈیفالٹ۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے حکام کے مطابق 2015 میں عدالت نے بینک کے حق میں فیصلہ دیا، لیکن ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ 1987 سے 2015 تک کے شوگر ملز کے ساتھ معاملات ہیں۔ 3 شوگر ملز قرض کی واپسی کی قسطیں بھیج رہی ہیں، 4 شوگر ملز کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ان کی اقساط بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چینی کی امپورٹ پر سوالات اٹھا دیے گئے۔ رکن کمیٹی ریاض پتیانہ نے کہا کہ چینی پر ٹیکس کم کر کے 0.25% کرنا ایک بڑا شوگر اسکینڈل ہے۔ جنید اکبر خان چیئرمین FBR پر برس پڑے، بولے کہ عوام کے لیے IMF کا بہانہ اور سرمایہ کاروں کے لیے سب کچھ منظور۔ چیئرمین FBR راشد لنگریال نے جواب دیا کہ ہم کابینہ کے فیصلوں کے پابند ہیں، ہمیں کہا گیا تھا کہ کسٹم ڈیوٹی ختم اور سیلز ٹیکس کم کیا جائے۔ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ، اربوں روپے کی ناجائز منافع خوری۔ وفاقی حکومت متحرک، ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث ملز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ FBR اور 4 صوبوں کی فوڈ اتھارٹیز کو گرین سگنل دے دیا گیا۔ صوبائی حکومتوں سے چینی کے مقررہ کردہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب۔ چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ FBR کی اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوش آئند۔ اصلاحاتی عمل میں تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت، تجاویز کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کو FBR کی اصلاحات اقدامات کے نتائج اور اہداف پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ FBR کے ڈیجیٹائزیشن سے اہداف کے حصول میں معاونت ملی، مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ وزیر اعظم کی غیر رسمی معیشت روکنے کے لیے انفورسمنٹ کے حوالے سے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت۔ ہم نے اپنی بیٹی اور احسان اللہ کو بلوچ روایات کے مطابق سزا دی۔ ڈگاری میں قتل ہونے والی خاتون بانو بی بی کی والدہ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ مقتولہ کی والدہ گلجان نے قتل کو درست قرار دے دیا، کہا میری بیٹی کے 5 بچے ہیں، ہمارا گھر ڈگاری میں ہے، احسان اللہ ہمارا ہمسایہ تھا۔ ملزم سردار شیرباز 7 تجزیے کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع۔ عدالت نے ملزم کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سیریس کرائم انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم بشیر احمد بھی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ کوئٹہ کے قمرانی روڈ لاشار آباد میں باپ نے فائرنگ کر کے بیٹی اور بھانجے کو مار ڈالا۔ ملزم اپنے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر موقع سے فرار۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کیس کرائم انویسٹیگیشن ونگ منتقل کر دیا۔ دیکھیں، یہ کہنا بالکل قبل از وقت ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ابھی 8-9 مقدمات اور ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں۔ جو یہ فسطائیت ہے اس کا ہم سب شکار ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، لہٰذا کوئی غلط مفروضہ نہ قائم کیا جائے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف 8 سے 9 مقدمات ہیں، وہ باہر نہیں آ رہے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، فیصلہ ساز منصوبہ ساز کیا کرنا چاہتے ہیں۔
9 मई को लाहौर में 14 जगह पर वाकयात हुए, जिसमें थानों को जलाया गया, जिसमें जिना हाउस को जलाया गया, जिसमें सरकारी और जाती इमलाक को जलाया गया, और जिसमें 82 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। 9 मई के वाकयात में DIG की आंख जाया हुई, वो आज भी कोमा में है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं PTI की क़यादत और कारकुनों के वीडियो सबूत हैं कि वो 9 मई में मुलव्विस हैं। PTI के कारकुनों को सजाएं पहले होनी चाहिए थी। 9 मई करने और कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन है। 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। प्लानिंग किसने की, कहाँ की और इसमें कौन कौन शामिल था, ये भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। शर्जील इनाम मीमन बोली, एहसान है 9 मई में मुलव्विस लोगों को मुआफ नहीं किया जा सकता। मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। इमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के एजाज में शाया, कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। जंग अगर जारी रही तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की ऑफर करके जंग रुकवाई। नरेंद्र मोदी ने फिर जवाब नहीं दिया, यही सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। ट्रंप के सीज फायर दावों पर राहुल गांधी मोदी पर बरस पड़े। मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया, कहा पूरी दुनिया जानती है ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया। ये हकीकत है, इससे छुपा नहीं जा सकता। कराची के इलाके बफर जोन में मोटरसाइकिल सवार डकैत गैंग सरगर्म, मुलजिमान की पै दर पे वारदातें। पुलिस ला इल्म यूनिवर्सिटी की तालिबा से लूटमार की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। मुलजिमान तालिबा से मोबाइल फोन छीन कर फरार। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में शहरी घर के बाहर वारदात का निशाना बन गया। जैसे ही शहरी घर के सामने पहुंचा, 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान आए, मोबाइल और नकदी छीनी और आराम से फरार हो गए। कराची के इलाके लियारी में 9 बेहाता लड़की पर तशद्दुद, कोमा में जाने वाली शांति दम तोड़ गई। मुतासरा लड़की को ऑपरेशन के बाद तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद के शवाहिद मिले थे। पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार करके मुकदमे का इंदराज कर लिया। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हुकूमत के PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम, कहा हाल ही में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद होंगे। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बमायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। पाकिस्तान की बढ़ती हुई मईशत पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। अमरीकी सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े हैं। शुरा का दोनों ममालिक की माशी शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने के आज़म का इरादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बांग्लादेश। बांग्लादेशी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री सहूलत देने का उसूली फैसला। वज़राए दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंसदाद मुनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। शाहराह भुट्टो को दिसंबर में खोल दिया जाएगा। अब शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से क़य्यूमाबाद तक तामीरात का वक्त है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में गुफ्तगू। कहा क़य्यूमाबाद से बोट बेसिन, ज़ियाउद्दीन चौरंगी ता ईस्ट बाग ता शाहराह भुट्टो की तामीर होगी। सोहराब कोर्ट पर भी राउंड अबाउट को नए सिरे से डिजाइन कर रहे हैं। रेड लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम को तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का बड़ा फैसला। सखर एयरपोर्ट और डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट को बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। रहीम यार खान एयरपोर्ट की तामीर नौ रनवे को बड़ा करने के फैसले की भी मंजूरी दे दी गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नए एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला हुकूमत करेगी।
TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरगर्म होने देना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खड़ा है। दहशतगर्दों की ऑनलाइन मौजूदगी उनके नजरियात को फैलाने का जरिया बन रही है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ किसी किस्म की नरमी बरतने के खिलाफ है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से पाक भारत कशीदगी से मुतालिक सवाल पूछा गया कि सदर ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो से पाक भारत लीडरशिप को दावत देने का कहा था। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके हैं, आइंदा क्या होने जा रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने जवाब में कहा, जुमे को एक पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में उन तमाम उमूर पर बातचीत होगी। हम जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तानी रहनुमा से मिलने के मुंतज़िर हैं। गजा में इसराइली फौज ने मजीद 81 फलस्तीनियों की जान ले ली। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शहदा में शामिल। गुज़िश्ता रोज़ गजा में 15 अफराद भूख के बाइस जान से गए। क़हत से मरने वालों की तादाद 101 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मई से अब तक गजा में 1000 से ज़ायद अफराद को इमदादी मराकज़ पर कत्ल किया गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खबरदार किया है कि गजा में लोग इज्तिमाई तौर पर भूख से हलाकत के दहाने पर पहुँच गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर ओबामा को गद्दार करार दे दिया। कहते हैं ओबामा ने गैंग के साथ मिलकर इलेक्शन में रूसी मुदाखलत का इल्जाम लगाया। ओबामा की गैंग में शाल बाइडन, हिलरी और उनके साथियों ने इलेक्शन चोरी किया। इलेक्शन में मुदाखलत के झूठे दावे करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। साबिक सदर ओबामा ने सदर ट्रंप का 2016 के इलेक्शन से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप जेफरी एपिस्टिन केस से तवज्जो हटाने के लिए बयान दे रहे हैं। भारतीय हुकूमत का क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत के मातहत करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। भारतीय पार्लियामेंट में आज क्रिकेट बोर्ड को वजारत खेल के मातहत करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश किया जाएगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल कल ढाका में खेला जाएगा। मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।